तो आपकी कम्युनिकेटिव लैंग्वेज की जो थियरी है वो कहती है कि लैंग्वेज लर्निंग जो है वो सक्सेसफुल होती है जब आप कम्युनिकेशन के जरिए और कम्युनिकेशन ऑफ रियल मीनिंग्स के जरिए जब आप लैंग्वेज यूज करते हो, मतलब जब आप लैंग्वेज यूज करते हो मीनिंग्स की कम्युनिकेशन के लिए, कॉन्सेप्ट्स को शेयर करने के लिए, आइडियाज को शेयर करने के लिए, रादर देन फोकसिंग ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ द लैंग्वेज। जिस तरह ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में होता था कि वहाँ पे स्ट्रक्चर, ग्रामर, ग्रामेटिकल रूल्स और वो उन चीज़ों का ख्याल रखा जाता है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट्स और पार्ट्स ऑफ स्पीच और ग्रामर और टेंसेस और नरेशन और वॉइस, उन चीज़ों को जब आप फोकस करते हो तो वो आप स्ट्रक्चर पे फोकस करते हो। कम्युनिकेटिव लैंग्वेज थियरी कहती है कि यू यूज लैंग्वेज टू कम्युनिकेट रियल मीनिंग्स। When learners are involved in real communication, that is normal conversational language, not bookish language or not focusing on the structures, but rather actual language that is used for communication. So when learners they use language for communication, the natural strategies for language acquisition will be used. The way you used your first language, your mother language, and the way you acquire that language. So when you start using the communicative method, you apply the same things the way you did in your first language. And this will allow them to learn to use the language. Communicative method, it does not teach you the rules of grammar or the structures. Rather, it focuses on the actual use of the language, the way it is used in routine daily life, right? अच्छा, एक एग्जाम्पल आप देख लें। Practicing question forms by asking learners to find out personal information about their colleagues is an example of the communicative approach as it involves meaningful communication. Practicing question forms हैं कि टीचर अपने स्टूडेंट्स को क्वेश्चंस दे दे, एक एक्सरसाइज कराए उनसे कि वो अपने कोलीग्स के बारे में इंफॉर्मेशन करें through communicative approach, meaning thereby using the target language when you will inquire or ask your colleagues about whatever information you are supposed to collect or gather. This act or this action involves the communicative use of language, because when you'll be gathering information or data about your colleague and then presenting it to your teacher, it means that you will be using the language in a communicative way, gathering information from your colleague, asking about his whatever details are needed. So when you will be using the language, the target language for this purpose, this is what we call the communicative approach, because here you are not focusing on the structure, rather you are actually trying to convey and get meanings in the target language. आपसे अगर मैं कहूं कि आप अपने अपने दोस्तों के बारे में मालूमात हासिल करें टारगेट लैंग्वेज में, उनसे हासिल करें और वो फिर शेयर करें मेरे साथ, तो आप जो लैंग्वेज यूज करोगे वो कम्युनिकेटिव अप्रोच होगा। वहां पे you do not focus on the structure, that is not important. The real thing is to get to gather information, to gather ideas about your colleagues, about your peers, about your class fellows or mates. So it involves meaningful communication. ये जो communication फिर आपकी होगी अपने colleagues के साथ, अपने दोस्तों के साथ, उनसे आप मालूमात हासिल करोगे, questions पूछोगे, तो ये meaningful communication है। There all your focus is on getting the meanings and ideas rather than focusing on structures and rules and grammars. अच्छा, क्लासरूम में क्या हो सकता है? क्लासरूम एक्टिविटीज guided by the communicative approach are characterized by trying to produce meaningful and real communication at all levels. क्लासरूम में जो कम्युनिकेटिव अप्रोच जब आप अप्लाई करते हो तो उसमें उसकी क्या क्वालिटीज हैं या उसमें क्या कैरेक्टरिस्टिक्स उसकी क्या होती हैं कि यू ट्राई टू प्रोड्यूस मीनिंगफुल एंड रियल कम्युनिकेशन एट ऑल लेवल्स। At all levels mean when you are communicating among your peers or when you are communicating with your teacher in the classroom, the language method that you will adopt will be the communicative method. Why? Because there the purpose of communication is to impart, transfer or share meanings or ideas. So
we do not focus on the grammar, we do not focus on the rules or the structure. Rather, on the contrary, our main emphasis would be on meanings and ideas. As a result, there may be more emphasis on skills than systems. सिस्टम क्या है? यही आपका ग्रामर, आपके स्ट्रक्चर्स, आपकी जो इंट्रिकेसीज या कॉम्प्लिकेशंस जो पेचीदगियां हैं लैंग्वेज लर्निंग में, जो कि हमने जीटीएम में डिस्कस की थी, कि आपकी एम्फेसिस फिर स्किल्स पे होती है, सिस्टम्स पे नहीं, स्ट्रक्चर्स पे नहीं, बल्कि स्किल्स पे। और स्किल्स क्या होती हैं? यही कि आप किस तरीके से सामने वाले को अपना मीनिंग या आइडियाज कन्वे करते हो, और उसके आइडियाज को आप किस तरह कंप्रीहेंड करते हो, उसकी कंप्रीहेंशन किस तरह करते हो। Lessons are more learner centered and there may be use of authentic material. कम्युनिकेटिव अप्रोच में जो लेसन्स होते हैं वो लर्नर सेंटर्ड होते हैं, मतलब उसका सारा जो एम्फेसिस होता है वो लर्नर पे होता है, कि लर्नर को कोई फ्रूटफुल रिजल्ट मिले उसका। और फ्रूटफुल रिजल्ट क्या होगा? एक्वायरिंग द लैंग्वेज, नोइंग हाउ टू यूज लैंग्वेज, हाउ टू कम्युनिकेट आइडियाज एंड मीनिंग्स। क्योंकि आप जो लैंग्वेज यूज करते हो, जो वर्ड्स आप यूज करते हो, दे आर सिंबल्स। इस स्लाइड को आप देख लो, ये जो वर्ड्स आपके सामने नजर आ रहे हैं, जो पैराग्राफ है, 5-6 लाइंस हैं, इस हर एक लफ्ज के पीछे एक मीनिंग छुपा हुआ है, एक आइडिया है। नाउ दीज वर्ड्स, दे आर जस्ट सिंबल्स to convey or communicate the meanings, the underlying meanings behind them, and that is the sole purpose of communication. ये स्लाइड्स अगर मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, तो इन सिंबल्स के पीछे जो मीनिंग्स हैं, जो आइडियाज हैं, वो आपके साथ वो आपको कन्वे करना और वो आपके साथ शेयर करना मेरा मकसद है। बिकॉज फ्रॉम दोज आइडियाज यू विल गेन समथिंग, एंड दैट इज व्हाट वी कॉल So that is why we say that in communicative approach, the focus or the emphasis is on the meanings rather than structure. Acha. Communicative language teaching is an approach to the teaching of second and foreign language, emphasizing interaction as both the means and ultimate goal of learning a language. Communicative, ये माइक्रोफोन बार बार कौन ऑन कर रहा है? मैं इसको ऑफ कर देता हूँ। हवा में कौन है? प्राइम 2018। So communicative language teaching is an approach to the teaching of second and foreign languages, emphasizes interaction as both the means and the ultimate goal of learning a language. इंटरेक्शन असल चीज है इसका। कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग का जो सारा एम्फेसिस है, जो सारा स्ट्रेस है, जो सारा फोकस है, वो इंटरेक्शन पे है कि आप इंटरेक्शन करो। और इंटरेक्शन लैंग्वेज आप क्यों, लैंग्वेज लर्निंग हम क्यों करते हैं? अगर एक लैंग्वेज हमने उसकी लर्निंग हम चाह रहे हैं कि करें, तो क्यों? क्योंकि उसका मेन पर्पस, उसका मेन मकसद ही यही है कि हम उसमें इंटरेक्शन कर सकें। और इंटरेक्शन क्या है? कंप्रीहेंशन ऑफ आइडियाज, कंप्रीहेंशन ऑफ मीनिंग्स। तो अल्टीमेट गोल इसका यही है। It is also referred to as the communicative approach. Historically, CLT, communicative language teaching, has been seen as a response to the audio-lingual method and as an extension or development of the notional functional syllabus. कहते हैं कि हिस्टोरिकली सीएलटी से पहले चूंकि ऑडियो लिंगुअल मेथड हम पढ़ चुके हैं, तो ये उसका एक रिस्पॉन्स था, और ये एक एक्सटेंशन थी या एक डेवलपमेंट थी किस चीज की? नेशनल फंक्शनल सिलेबस की। नेशनल फंक्शनल सिलेबस क्या है वो आगे की स्लाइड में हम पढ़ेंगे। टास्क बेस्ड लर्निंग, लैंग्वेज लर्निंग, a more recent refinement of CLT, has gained considerably in popularity. कि रिसेंटली जो टास्क बेस्ड लैंग्वेज लर्निंग है, जिसमें स्टूडेंट्स को एक्टिविटीज में इन्वॉल्व किया जाता है प्रैक्टिकली, in being involved in different activities, they use the language to to impart or transfer meanings or ideas. Once you are involved in doing something, and then when you are supposed to explain or share that very action in the target language, जो भी आप कर रहे हो, जब आप उसको टारगेट लैंग्वेज में
फिर शेयर करो, तो उसको टास्क बेस्ड लैंग्वेज लर्निंग कहते हैं, कि जो भी आप कर रहे हो प्रैक्टिकली उस वक्त उसको टारगेट लैंग्वेज में एक्सप्रेस करना। कहते हैं कि ये रिफाइनमेंट है, एक एडवांस्ड फॉर्म है, एक डेवलप्ड फॉर्म है कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग की, एंड इट हैज गेन्ड कंसिडरेबल पॉपुलैरिटी रिसेंटली। The increasing interdependency between the European countries necessitated a need for a greater effort to teach adults the principal languages of the continent. कहते हैं कि डिपेंडेंसी जो यूरोपियन कंट्रीज है वहां पे इंटरडिपेंडेंसी ज्यादा हो गई है हमारी, उसके लिए एक एफर्ट है कि जो एडल्ट्स हैं, जो बच्चे जो होते हैं, जो कि आपके प्राइमरी ग्रेड के होते हैं या जो स्कूल के आपके जो लोअर लेवल के स्टूडेंट्स होते हैं, वहां पे तो लैंग्वेज लर्निंग इजीली हो जाती है क्योंकि वो एज ऐसी होती है कि वहां पे आप कर सकते हो। लेकिन जब बात एडल्ट्स की आ जाती है तो वहां पे आम जो कन्वेंशनल मेथड्स हैं उसमें लैंग्वेज लर्निंग फिर प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं, बिकॉज वो एप्लीकेबल उस तरह नहीं होती जिस तरह लोअर लेवल्स में या इनिशियल स्टेजेस पे जिस तरह वो फ्रूटफुल हो सकती है, एडल्टहुड में फिर वो उस तरह काम नहीं कर सकती। तो उस चीज की कमी को पूरा करने के लिए फिर ये कम्युनिकेटिव जो लैंग्वेज टीचिंग मेथड है उसको लाया गया। नाउ न्यू गोल्स वर सेट इन लैंग्वेज टीचिंग प्रोफेशन। लैंग्वेज टीचिंग जो एक प्रोफेशन है या जो एक लाइन है, उसमें नए ऑब्जेक्टिव्स और नए गोल सेट किए गए। उसमें क्या था कि द पैरामाउंट इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन एस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज। सबसे पहली चीज जिसको इंपॉर्टेंस दी गई और जिसको सामने रख के ये मॉडल बनाए गए, वो क्या था? कम्युनिकेटिव एस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज। ऐसा भी हो सकता है कि आप लैंग्वेज को लर्न कर लेते हो, वो आप उसको सीख लेते हो, लेकिन जब बात आती है फिर उसी लैंग्वेज में कम्युनिकेशन की, तो वहां पे फिर ड्रॉबैक्स आ जाती हैं कि वहां पे फिर वो प्रॉब्लम्स होती हैं उसी बंदे को जिसने वो लैंग्वेज लर्न की होती है। तो सीएलटी में क्या हुआ कि इंपॉर्टेंस दी गई कम्युनिकेटिव एस्पेक्ट्स को, कि लैंग्वेज तो आप लर्न कर लो लेकिन अगर आप उसको यूटिलाइज ना कर सको तो लर्निंग का फायदा क्या? फिर क्या कि इंक्रीजिंग इंटरेस्ट इन मीनिंगफुल लर्निंग। मीनिंगफुल लर्निंग वही जो अभी पिछले स्लाइड्स में हमने डिस्कस किया कि व्हेन यू इम्पार्ट और कम्युनिकेट मीनिंग्स और आइडियाज बिहाइंड द वर्ड्स। अगर सेकंड लैंग्वेज में आपकी सपोज वोकेबलरी आपकी स्ट्रांग हो है भी, लेकिन आपको पता नहीं है कि उस वर्ड को, उस एक्सप्रेशन को मैंने यूज किस तरह करना है, उसके जरिए मैंने मीनिंग्स कन्वे किस तरह करने हैं, तो फिर उसका कोई फायदा नहीं। द ग्रोइंग सेंट्रलिटी ऑफ द लर्नर इन टीचिंग प्रोसेसेस, कि जो टीचिंग प्रोसेसेस जो आई, जितने भी मेथड्स आए, उसमें जो फोकस था, जो जो एम्फेसिस थी, वो बन गया लर्नर, कि जिन लर्नर को सामने रख के उसकी जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, जो इश्यूज हैं, उसको सामने आ सकती हैं लैंग्वेज लर्निंग में, उनको सामने रखते हुए कोई ऐसा मॉडल बनाया जाए कि जिससे वो प्रॉब्लम्स, वो इश्यूज, वो डिफिकल्टीज वो हल हो जाए, वो दूर हो जाए, वो खत्म हो सकें। फिर द सबऑर्डिनेट इंपॉर्टेंस ऑफ स्ट्रक्चरल टीचिंग ऑफ लैंग्वेज। ये जो हम जिस तरह ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में हम पढ़ते थे कि आपको टेंसेस से शुरू किया जाता था, पार्ट्स ऑफ स्पीच पहले पढ़ाए जाते थे, फिर टेंसेस और फिर वॉइस और फिर नरेशन, और ये तमाम चीजें क्या थी? ये स्ट्रक्चर थी। ये जो नया मेथड आया कम्युनिकेटिव, तो उसमें क्या हुआ कि स्ट्रक्चरल टीचिंग को सबऑर्डिनेट इंपॉर्टेंस दी गई, कि प्राइमरी इंपॉर्टेंस जो है वो कम्युनिकेटिव एस्पेक्ट हो गया और स्ट्रक्चर जो है वो सबऑर्डिनेट इंपॉर्टेंस है। क्यों? क्योंकि once you start learning the language in a communicative way, from point of view of communication, initially you might have problems in the structure, but with the passage of time and comparatively much faster, you can remove those structural flaws from your language. The reason is that once your communication is in the target language, in the presence of the teacher in the classroom, you, the student or the learner, is able to rectify his mistakes comparatively in a faster pace as compared to other methods of teaching. जिस तरह एग्जांपल्स मैंने दी ग्रामर ट्रांसलेशन की और दूसरे मेथड्स की, कि वहां पे फिर प्रॉब्लम्स होती हैं। अच्छा, नेशनल और फंक्शनल डायमेंशंस ऑफ लैंग्वेज क्या है? Applied linguists and philosophers addressed another fundamental dimension of language,
कि जो लिंग्विस्ट्स और फिलोसोफर्स थे उन्होंने एक दूसरी डायमेंशन को टच किया। वो क्या था? द फंक्शनल एंड कम्युनिकेटिव पोटेंशियल ऑफ लैंग्वेज, कि फंक्शनल पोटेंशियल क्या है लैंग्वेज का, किस तरीके से आप उसको प्रैक्टिकली यूज करो, और कम्युनिकेटिव पोटेंशियल वही जो हमने डिस्कस किया। द स्पीच theory showed that we do something when we speak a language. We use language to get things, to control behavior, to create interaction with others, to express personal feelings, to learn, to create a world of imagination, to communicate information. ये तमाम क्या है? जब हम लैंग्वेज यूज करते हैं तो हम उसके जरिए, उस लैंग्वेज के यूज के जरिए हम ये तमाम चीजें, ये जो दिए गए हैं बुलेट्स में, ये फंक्शंस हैं, ठीक। और इसी में फिर आपके कम्युनिकेटिव एस्पेक्ट्स भी आते हैं। फंक्शंस क्या हैं? गेट थिंग्स, कंट्रोलिंग बिहेवियर, इंटरेक्शन आपका फिर कम्युनिकेटिव एस्पेक्ट्स आ गया, ये भी कम्युनिकेशन है। लर्निंग आपके फंक्शंस हैं। वर्ल्ड ऑफ इमेजिनेशन है, टू क्रिएट और टू कम्युनिकेट इंफॉर्मेशन। तो जो चेंज आया, जो शिफ्ट आया और जो डिफरेंसेस आई इनिशियल जो मॉडल्स थे लैंग्वेज लर्निंग के या जो मेथड्स थे, और इस करंट कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग में, कि यहाँ पे आपका फोकस आ गया किस चीज पे? फंक्शंस पे और कम्युनिकेशन पे, rather than being stuck in structures. Besides, applied linguists emphasized a teaching of language based on communicative proficiency rather than mastery of structures. Structures आप यहाँ पे इंपॉर्टेंस उनकी वो नहीं रही जो कि पिछले मॉडल्स में थी, और यहाँ पे जो एम्फेसिस है वो कम्युनिकेटिव प्रोफिशिएंसी पे है। लैंग्वेज लर्निंग का जो मेन ऑब्जेक्टिव या गोल है वो यही है कि आप उसमें अपने आप को एक्सप्रेस कर सको, जो भी आपके माइंड में आइडियाज हैं, जो क्वेश्चंस हैं, जो थॉट्स हैं, जो फीलिंग्स हैं, जो भी आप कहना चाहते हो, अगर आप उसको कम्युनिकेट ना कर सको तो लैंग्वेज लर्निंग का फायदा क्या? तो सीएलटी में जो हमारा सारा एम्फेसिस है वो इसी में है कि आप लैंग्वेज को लर्न करो, सीखो, लेकिन ऐसे अंदाज में उसका आउटकम फिर ये होना चाहिए कि आप उस लैंग्वेज में फिर कम्युनिकेट कर सको एज एफिशिएंटली एज यू डू इन योर मदर टंग। So, besides, applied linguists emphasized a teaching of language based on communicative proficiency rather than mastery of structures. Instead of describing the core of language through traditional concepts of grammar and vocabulary, they, Van Eyck and Alexander and Wilkins, they attempted to show the systems of meanings underlying the communicative use of language. के चूंकि कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग का सारा जो एम्फेसिस था वो कम्युनिकेटिव एस्पेक्ट पे था, तो ये कहते हैं कि बजाय इसके कि आप लैंग्वेज के ओरिजिन या कोर में जाओ और या वही ट्रेडिशनल जो कॉन्सेप्ट्स हैं कि ग्रामर और वोकैबुलरी को लर्निंग, वो उन चीजों के बजाय यहाँ पे जो क्या हुआ एम्फेसिस, वो क्या था? सिस्टम ऑफ मीनिंग्स अंडरलाइन द कम्युनिकेटिव यूज ऑफ लैंग्वेज। कि कम्युनिकेटिव यूज ऑफ लैंग्वेज जो है, जो लैंग्वेज जब आप कम्युनिकेशन के लिए यूज करते हो, उसमें जो मीनिंग्स हैं, जो आइडियाज हैं, उन पे सारा फोकस हो गया। कि यहाँ पे हमारा एम्फेसिस एक लर्नर के लिए ये है कि लैंग्वेज, टारगेट लैंग्वेज में जो अंडरलाइंग मीनिंग्स हैं उसको वो समझ सके और उसके पॉइंट ऑफ व्यू से फिर वो कम्युनिकेट कर सके। अच्छा, फिर मीनिंग्स के उन्होंने दो काइंड्स बताए कि ये जो जिसको हम मीनिंग्स कहते हैं, सो देयर आर टू काइंड्स ऑफ मीनिंग्स। The first one is the national categories. Concepts such as time, sequence, quantity, location and frequency. ये जो आइडियाज हैं कि टाइम है, सीक्वेंस है, क्वांटिटी, लोकेशन और फ्रीक्वेंसी। और फिर फंक्शनल कैटेगरीज, रिक्वेस्ट्स, ऑफर्स, कंप्लेंट्स, इनविटेशन। ये जो भी आप पढ़ रहे हो, ये दोनों कैटेगरीज जो हैं, दे आर स्ट्रिक्टली कम्युनिकेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज। ये चीजें आप कम्युनिकेशन में यूज करते हो। जब आप एक लैंग्वेज को यूज करते हो, ये नेशनल कैटेगरीज और फंक्शनल कैटेगरीज, they are from the point of view of communicative aspects of language. In other words, a notion, ये जो notional categories है, notion किसे कहते हैं? Ideas को, एक आइडिया को। A notion is a particular
context in which people communicate. वो कॉन्टेक्स्ट, वो सियाक व सबाक जिसमें आप कम्युनिकेट करते हो, उसको वो कहते हैं कि वो नोशन है। नोशनल कैटेगरीज उसको कहते हैं, और फंक्शनल कैटेगरीज। A function is a specific purpose for a speaker in a given context. एक गिवन कॉन्टेक्स्ट में जो स्पेसिफिक पर्पस है स्पीकर के लिए, उसको फिर फंक्शन कहते हैं। फॉर एग्जांपल, द नोशन ऑफ शॉपिंग रिक्वायर्स न्यूमरस लैंग्वेज फंक्शंस सच एज आस्किंग अबाउट प्राइसेस और फीचर्स ऑफ अ प्रोडक्ट एंड बार्गेनिंग। तो नोशन आपका शॉपिंग हो गया। कम्युनिकेटिव लैंग्वेज में मीनिंग्स दो काइंड्स की होती हैं, एक नोशन और एक फंक्शनल। तो अब इसको एक एग्जांपल के जरिए वो आपको बताते हैं कि नोशन क्या है। नोशन है शॉपिंग का, हमने शॉपिंग पे जाना है। अब उस नोशन के लिए फिर आपको कुछ फंक्शंस हैं लैंग्वेज की, जो जिसकी आपको जरूरत पड़ती है। मिसाल के तौर पे वो क्या है? आस्किंग अबाउट प्राइसेस। डेफिनेटली जब आप शॉपिंग पे जाओगे, यू हैव टू कम्युनिकेट। तो आस्किंग अबाउट प्राइसेस और फीचर्स ऑफ अ प्रोडक्ट, आप पूछते हो ये चीज कैसी है, इसकी क्वालिटी क्या है, स्टैंडर्ड है नहीं है, सब स्टैंडर्ड है, प्राइस, बाकी जो भी चीजें हैं। एंड बार्गेनिंग, जो कि एक 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 आई डोंट नो। अच्छा, for Chomsky, the focus of linguistics was to describe the linguistic competence that enables speaker to produce grammatically correct sentences. चॉम्स्की के लिए, जो कि एक लिंग्विस्ट था, वो लिंग्विस्टिक्स का फोकस क्या था? टू डिस्क्राइब द लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस दैट इनेबल स्पीकर टू प्रोड्यूस ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंसेस। उनके लिए जो फोकस था वो लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस था। और लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस से हमारा मतलब क्या है? कि आप एक लैंग्वेज को ग्रामेटिकली करेक्ट तरीके से यूज करो, कि जो सेंटेंसेस आप बोलो, जो आइडियाज आप शेयर करो, वो स्ट्रक्चरली उनका स्ट्रक्चर ठीक हो। Delhaims held, however, that such a view of the linguistic theory was sterile and that it failed to picture all the aspects of the language. Delhaims ने कहा कि ये जो linguistic competence वाला जो aspect है language का, that was sterile and it did not succeed in covering all the aspects of language. क्योंकि लैंग्वेज सिर्फ ग्रामर और स्ट्रक्चर का नाम नहीं है। तो ये जो कॉन्सेप्ट था लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस का, ये लैंग्वेज की उस फंक्शन को और लर्निंग के ऑब्जेक्टिव्स को पूरी तरह कवर नहीं करता। क्योंकि यहाँ पे स्ट्रक्चर या जो फोकस होता है वो सिर्फ आपका स्ट्रक्चर पे आ जाता है। ठीक। He advocated the need for a theory that incorporates communication competence. तो डेलहेम्स ने जिस चीज को फेवर किया और जिस चीज को एडवोकेट किया, वो एक ऐसा मॉडल था, एक ऐसी थियरी थी कि जिसमें कम्युनिकेशन और कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस पे भी बात हो और उसको कवर किया जा सके। क्योंकि अगर लैंग्वेज लर्निंग के बाद भी आपकी कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस नहीं है, एक लैंग्वेज आपने लर्न की है लेकिन फिर भी आप उसमें कम्युनिकेट नहीं कर सकते, उस तरह कम्युनिकेशन जिस तरह नॉर्मल रूटीन में आप लोग अपनी मदर टंग में करते हो, तो फिर इसका मतलब ये है कि आपका लैंग्वेज लर्निंग उसका कोई फायदा नहीं है, वो जाया हो गया या उसका वो फ्रूटफुल नहीं रहा। और जो ऑब्जेक्टिव था लैंग्वेज लर्निंग का, दैट हैज नॉट बीन अचीव। लेकिन अगर कम्युनिकेशन के की जो एस्पेक्ट्स हैं, जो कॉम्पिटेंस है, अगर वो उसमें कवर होती है तो फिर ठीक है। इट मस्ट बी अ डेफिनेशन ऑफ व्हाट अ स्पीकर नीड्स टू नो in order to be communicatively competent in a speech community. तो कहते हैं कि लैंग्वेज मॉडल तो ऐसा होना चाहिए कि it should be a definition of what a speaker needs to know in order to be communicatively competent. एक स्पीकर जो जानना चाहता है, अगर एक स्पीच कम्युनिटी में, सपोज आप एक ऐसी कम्युनिटी में हो जिसमें वो टारगेट लैंग्वेज यूज हो रही है और वहां पे आपकी कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस नहीं है, तो फिर तो उसका कोई फायदा नहीं है। तो एक ऐसा मॉडल डेवलपमेंट का डेलहम्स ने उसको एडवोकेट किया कि एक ऐसा मॉडल होना चाहिए कि जिसमें कम्युनिकेशन पे एम्फेसिस हो और कम्युनिकेटिवली स्टूडेंट्स इस काबिल हों, उनकी वो कॉम्पिटेंस उस लेवल तक पहुंच सके कि वो टारगेट लैंग्वेज में कम्युनिकेट कर सकें। अच्छा, डायमेंशंस हैं कम्युनिकेटिव कॉन्फिडेंस की। 4 डायमेंशन उन्होंने बताई हैं कि लेटर
Canal and Swain described 4 dimensions of communicative competence. Communicative competence की कौन से 4 dimensions हैं, कौन-कौन से 4 areas को वो cover करता है, वो देखते हैं. First है grammatical competence, refers to what Chomsky called linguistic competence. ये हमने पढ़ लिया. Social linguistic competence refers to an understanding of the social context in which communication takes place. Role relationships, shared beliefs, and information between participants. Understanding of social context कि जिस social मुआशी context जिस सियाको सबाक में आप communication कर रहे हो या जहां पे communication हो रही है उसको समझना. अगर लैंग्वेज लर्निंग मॉडल का आउटकम वो ऐसा हो कि जिसमें आप उस कॉन्टेक्स्ट को समझ सको, उस सोशल कॉन्टेक्स्ट को समझ सको जिसमें कम्युनिकेशन हो रही है, तो ये एक डायमेंशन होनी चाहिए आपकी कम्युनिकेटिव जो लैंग्वेज लर्निंग है या कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस जो है उसमें फिर आपका सोशल कॉन्टेक्स्ट भी आ सकता है. ठीक है. अच्छा, फिर डिस्कोर्स कॉम्पिटेंस है, refers to the interpretation of individual message elements in terms of their interconnectedness and how meaning is represented in relation to the entire discourse or text. Discourse refers to the interpretation of individual message elements के मैसेज जो पैगाम है, जो आइडिया भी शेयर हुआ है, जो बात भी हुई है, उसकी इंटरप्रिटेशन है in terms of their interconnectedness. कि एक सपोज एक सेंटेंस आया है, उस सेंटेंस में जितने भी वर्ड्स हैं, जितने भी आइडिया, जितने भी सिंबल्स यूज हुए हैं, उनकी इंटरकनेक्टेडनेस कि ये तमाम अल्फाज जब इकट्ठे हो जाएं और वो किस तरीके से वो मीनिंग को एक्सप्रेस करते हैं, उस चीज को समझना कि एक सेंटेंस में जितने वर्ड्स यूज हुए हैं, एक आइडिया, कुछ आइडियाज हैं, सिंबल्स हैं, और वो इकट्ठे होके जो मीनिंग देते हैं इन रिलेशन टू द एंटायर डिस्कोर्स, जो भी बातचीत हो रही है, जो भी आपकी ओवरऑल जो कम्युनिकेशन हो रही है, उसमें उस सेंटेंस का, उस ग्रुप ऑफ वर्ड्स का, उस सिंबल्स का, उसकी मीनिंग्स क्या है और वो क्या एक्सप्रेस करती हैं. अगर आपको ये चीजें समझ आ गई तो ये एक फैक्टर है, एक डायमेंशन है, एक एलिमेंट है कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस ऑफ लैंग्वेज की, कि अब बातचीत हो रही है और उसमें फिर आप किस तरीके से समझते हो सेंटेंसेस को, ग्रुप ऑफ वर्ड्स जब इकट्ठे होके जो आइडियाज एक्सप्रेस करते हैं, उनको समझना इन रिलेशन टू द ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट ऑफ द कम्युनिकेशन. ठीक है ना. फिर स्ट्रेटेजिक कॉम्पिटेंस है कि refers to the coping strategies that participants use to initiate, terminate, maintain, repair and redirect communication. आपकी स्ट्रेटेजिक कॉम्पिटेंस, कितने आप स्ट्रेटेजिकली स्ट्रांग हो लैंग्वेज के यूज के हवाले से. कोपिंग मींस डीलिंग विद समथिंग, तो refers to the coping strategies, how you deal, that participants use to initiate, terminate, maintain, repair and redirect communication. ये इनिशिएट करना, आप अपनी कम्युनिकेशन स्टार्ट कैसे करते हो, उसको एंड कैसे करते हो, टर्मिनेट कैसे करते हो, या अगर आप ये समझते हो कि आपको पता चल जाए कि आप ठीक जा रहे हो, तो उस कम्युनिकेशन को, उसी लेवल को आप मेंटेन किस तरह रखोगे. अगर उसमें कुछ शॉर्ट कमिंग्स हैं, अगर आपकी कम्युनिकेशन में कुछ शॉर्ट कमिंग्स हैं, उसको आप रिपेयर कैसे करोगे. एंड रीडायरेक्ट, कि आप किस तरीके से उसी कम्युनिकेशन को, उसकी डायरेक्शन को आप उसको रीडायरेक्ट करोगे. उन तमाम फ्लॉस को निकालने के बाद, इन तमाम शॉर्टकमिंग्स को निकालने के बाद, जब आप दोबारा रीडायरेक्शन, दोबारा एक नई डायरेक्शन दोगे अपनी कम्युनिकेशन को, तो अगर एक लैंग्वेज लर्निंग के बाद या एक ऐसा मॉडल कि जो आपकी इस स्ट्रेटेजिक कॉम्पिटेंस को पॉलिश कर सके, इसको सामने ला सके, तो ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होगा उस कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस का और सीएलटी का, कि आप इन सिचुएशंस में फिर किस तरीके से मोल्ड करते हो, शेप करते हो, चेंज करते हो अपनी लैंग्वेज यूज को और उसके आउटकम को. अच्छा, लर्निंग थियरी जो है, according to the communicative approach, in order for learning to take place, emphasis must be put on the importance of these variables. The communicative जो अप्रोच है
वो ये कहती हैं कि अगर आपने लर्निंग करनी है तो ये जो नीचे जो एलिमेंट्स दिए गए हुए हैं, इंपॉर्टेंस और एम्फेसिस आपका इन चीजों पे लाजमी होना चाहिए। अगर इन पे ना हो तो फिर आपके वो गोल्स वो अचीव नहीं होते। तो कम्युनिकेटिव अप्रोच में कहते हैं कि लैंग्वेज लर्निंग के लिए आपको इन चीजों पे एम्फेसिस देनी होगी। उसमें फर्स्ट वन कम्युनिकेशन, एक्टिविटीज दैट इन्वॉल्व रियल कम्युनिकेशन प्रमोट लर्निंग। आप किताब उठा लो और रट्टे लगाना शुरू कर दो, यू विल नेवर लर्न अ लैंग्वेज until and unless you know how to practically use a language in a real situation। ये जो हम क्लासरूम में अक्सर जाके कहते हैं कि जी आप मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन जो है अपना टारगेट लैंग्वेज रखो। मिसाल के तौर पे अगर मैं इंग्लिश लैंग्वेज टीच कर रहा हूँ या मेरा जो सब्जेक्ट है वो इंग्लिश है और मैं स्टूडेंट्स को स्ट्रेस करता हूँ तो उनको फोर्स करता हूँ कि जो भी कम्युनिकेशन क्लास में होगी वो अंग्रेजी में हो, वो टारगेट लैंग्वेज में हो, इंग्लिश लैंग्वेज में हो। वो क्यों होती है? क्योंकि उसके पीछे एक ऑब्जेक्टिव होता है कि यू शुड नो हाउ लैंग्वेज इज यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन। अब अगर आपको मैं कहूं कि आप मुझे सपोज अगर आपसे मैं कहूं कि आप मुझे ये CLT की डेफिनेशन बता दो, तो वो तो रटी रटाई डेफिनेशन होगी, वो तो आपने रटी होगी, रटा लगा के आप मुझे बता दोगे कि जी A to Z ये डेफिनेशन है। लेकिन अगर उस क्लास के दौरान आपकी एक पर्सनल एक चीज आ जाए, कुछ आप अपनी तरफ से कहना चाहो, कुछ करना चाहो और वो चीजें आप एक्सप्रेस करो फिर टारगेट लैंग्वेज में। हाँ, मिसाल के तौर पे क्लास शुरू है और क्लास के दौरान एक स्टूडेंट उठ के टारगेट लैंग्वेज में मुझे ये कहे कि जी मैंने लाइब्रेरी तक जाना है, वहां से मैंने एक बुक उठानी है, वो उसमें कुछ रेफरेंसेस मैंने लेने हैं। अब अगर एक स्टूडेंट को मैं फोर्स करूं कि वो यही बात टारगेट लैंग्वेज में मुझे कहे, दिस इज व्हाट वी कॉल कम्युनिकेटिव एस्पेक्ट ऑफ और कम्युनिकेटिव अप्रोच के टेक्स्ट के अलावा। क्योंकि लाइब्रेरी तक जाना, वहां से बुक उठाना किसी मकसद के लिए, ये कम्युनिकेटिव एस्पेक्ट्स हैं। ये नहीं है कि जी आप इस बात को आप पश्तो में या उर्दू में या किसी दूसरी मीडियम में आप मुझ तक पहुंचा दो, फिर तो मतलब ये कि आप कम्युनिकेशन के लिए वही मदर टंग यूज कर रहे हो, फिर तो टारगेट लैंग्वेज का एज सच कोई फायदा आपको नहीं है। अगर आपने वो लर्न की भी हुई है तो कोई फायदा नहीं है कि अगर आप उसमें अपने आप को एक्सप्रेस ना कर सको। तो कम्युनिकेशन का मतलब ये है कि आप रियल कम्युनिकेशन जो है वो आपकी लर्निंग को प्रमोट करती है। आप एक बार गलती करोगे, टीचर उसकी करेक्शन करेगा, 2 बार करोगे, 10 बार करोगे, जितनी बार भी आपकी मिस्टेक्स होंगी उस वो रेक्टिफाई होंगी और उन्हीं करेक्शंस की वजह से आपको पता चलेगा कि लैंग्वेज किस तरह यूज होती है। फिर है टास्क्स, एक्टिविटीज इन विच लैंग्वेज इज यूज्ड टू कैरी आउट मीनिंगफुल टास्क सपोर्ट द लर्निंग प्रोसेस। वो एक्टिविटीज कि जिसमें लैंग्वेज इस्तेमाल होती है कोई मीनिंगफुल टास्क के लिए, तो उसमें फिर आपकी लैंग्वेज जो जो लर्निंग प्रोसेस है वो बूस्ट होता है। वही टास्क बेस्ड एक्टिविटीज जो कि पिछली स्लाइड पे हमने डिस्कस किया कि जो भी आप करो तो उसमें फिर आप टारगेट लैंग्वेज को भी यूज करो। मीनिंग, लैंग्वेज दैट इज मीनिंगफुल एंड ऑथेंटिक टू द लर्नर बूस्ट लर्निंग। वो लैंग्वेज जो कि मीनिंगफुल हो और ऑथेंटिक हो, दुरुस्त हो, ठीक हो, वो लर्नर की लर्निंग को बूस्ट करती है, उसकी लर्निंग उससे इंक्रीज होती है और एक फायदा होता है। क्योंकि जब मीनिंगफुल ना हो, अगर आपकी कम्युनिकेशन या लैंग्वेज वो मीनिंगफुल ना हो तो वो फिर यूजलेस होती है। अच्छा, सिलेबस, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग का जो सिलेबस जो है वो क्या कहते हैं कि द टीचिंग सिलेबस ऑर्गेनाइजेज द टीचिंग अकॉर्डिंग टू द नोशनल एंड फंक्शनल कैटेगरीज ऑफ लैंग्वेज रादर देन अकॉर्डिंग टू इट्स स्ट्रक्चर्स। स्ट्रक्चर को बार बार यहाँ पे मेंशन किया जाता है कि ग्रामर और रूल्स और स्ट्रक्चर उस पर फोकस नहीं होता, बल्कि वो जो नोशनल और फंक्शनल कैटेगरीज हमने पढ़ी है जिसमें लैंग्वेज कम्युनिकेशन के लिए यूज होती है, सिलेबस इस CLT का भी
डिजाइन किया जाता है उन चीजों को सामने रखकर, ताकि जो सिलेबस बने कम से कम उससे उनके गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स तो अचीव हो सके ना। फिर इंटरेक्शंस हैं, अगर सिलेबस को डिजाइन करते वक्त ये तमाम चीजें जहन में रखी जाती हैं। एक कम्युनिकेटिव लैंग्वेज है, दूसरा है इंटरेक्शंस कि यूजिंग लैंग्वेज टू कम्युनिकेट, पढ़ चुके टास्क्स, यूजिंग लैंग्वेज टू परफॉर्म मीनिंगफुल टास्क्स, और लर्नर पुटिंग द लर्नर्स इंटरेस्ट्स एंड नीड्स इन द फोरफ्रंट। सिलेबस को तैयार करते वक्त लर्नर को सामने रखा जाता है कि उसकी नीड्स क्या हो सकती हैं, उसका इंटरेस्ट क्या होगा, और उसी के मुताबिक फिर सिलेबस डिजाइन करना। अच्छा, फिर मेरिट्स ऑफ सीएलटी हैं, कुछ एडवांटेजेस हैं, डिसएडवांटेजेस हैं सीएलटी की, जो कि यहां पे डिस्कस की गई है। There are many advantages in teaching according to the communicative approach. First, CLT is a holistic approach. ये overall आपकी language को cover करता है. It does not focus only on the traditional structural syllabus. It takes into consideration communicative dimensions of language. मतलब है कि सिर्फ स्ट्रक्चर्स पे फोकस नहीं है, बल्कि लैंग्वेज की यूज पे इसका फोकस है। CLT provides vitality and motivation within the classroom. अगर एक क्लासरूम में आपकी क्लास में सपोज मैं एक कह दूं कि जी नो उर्दू, नो पश्तो, नो अदर लैंग्वेज, नो हिंदको, नो पंजाबी, ओनली टारगेट लैंग्वेज इंग्लिश, तो एक वाइटलिटी और एक मोटिवेशन होती है। जब तमाम स्टूडेंट्स टारगेट लैंग्वेज को यूज करेंगे तो इससे इन स्टूडेंट्स को देखते हुए दूसरे स्टूडेंट्स को भी एक मोटिवेशन मिलती है। ठीक है। CLT इज अ लर्नर सेंटर्ड अप्रोच। CLT का जो अप्रोच है वो तमाम लर्नर को सामने रख के बनाया गया है। इट कैपिटलाइजेस ऑन द इंटरेस्ट्स एंड नीड्स ऑफ द लर्नर। वही बात। फिर in a world where communication of information and information technology have broken new considerable ground, CLT can play an important role in education. कहते हैं कि इंफॉर्मेशन की कम्युनिकेशन और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इन्होंने दुनिया की बिल्कुल वो फेस ही चेंज कर दिया। वो ट्रेडिशनल अप्रोचेस खत्म कर दी, एक बिल्कुल न्यू चीज सामने आ गई। तो अब चूंकि फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन और इंटरनेट का जमाना आ चुका है, तो उसमें कहते हैं कि क्या है, उसमें आपका CLT एक एक्टिव रोल प्ले कर सकता है। शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन है और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, एंड बिकॉज वी हैव टू कीप आवरसेल्फ एट पार with the developments and advancements in the modern world, so we do need CLT as a key to boosting our learning of target language. अच्छा, फिर उस पर कुछ क्रिटिसिज्म भी है, कुछ डिमेरिट्स भी बताए गए हैं उसके। अच्छा, क्रिटिसिज्म में नोशनल सिलेबस को क्रिटिसाइज किया गया सर था। ये अवेलेबल नहीं है, ये सिलेबस नहीं, ये अवेलेबल नहीं है पोर्टल पे सर, वहाँ पे ऑप्शन दे दिए